Hello students, good morning to all of you. I am Vinod Kumar, PGT Math, KV number 1, Ajmer. Welcome you to all in my class on behalf of KVSRO, Jaipur region. My topic is differential equation. And in previous video, we have discussed about some basic concepts of differential equation and order and degree of a differential equation. What is a differential equation and how to find order and degree of a differential equation. Today we will discuss about solution of a differential equation. In the previous classes, we have discussed about solution of any equation. Very simple. In class 8th, we have discussed about linear equation in one variable. So suppose an equation is given, and equation is twice x plus 3 is equal to 0. And I want to find the solution of this equation, the value of x such that equation is satisfied by x, or we can say by the value of x. So how to find solution of this equation? Twice x is equal to minus 3 by transposing, and x is equal to minus 3 by 2. So now we will check x is equal to minus 3 by 2 is a solution of this equation or not. So put x is equal to minus 3 by 2 in given equation. And given equation is twice into x, and x is minus 3 by 2 plus 3 is equal to 0. And now simplify it, 2 cancel, so minus 3 plus 3 is equal to 0, so 0 is equal to 0. Therefore this equation is satisfied. It means minus 3 by 2 is a solution of given equation. Now solution of a differential equation. The solution of a differential equation is a relation between the variables involved which satisfy the differential equation. यानी किसी भी differential equation का solution क्या होगा? Differential equation का solution एक ऐसा relation between variables जो उसमें involved रहते हैं और वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे. जैसे हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है. सपोज ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन dy by dx minus y is equal to 0, and there is a relation is given, and y is equal to e to the power x is a relation. Now we will check y is equal to e to the power x means this relation is a solution of this differential equation or not. So अगर यहाँ ये रिलेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो ये इसका एक सॉल्यूशन होगा. तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं. यहाँ पर y हमें गिवन है. आप डिफरेंशियल इक्वेशन में देख रहे हो कि dy by dx हमें चाहिए, तो हमें dy by dx फाइंड करना पड़ेगा. सो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. y का डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेंगे x के रेस्पेक्ट, और ये आ गया हमारे पास में dy by dx is equal to e to the power x. We know that derivative of e raised to power x is e raised to power x. अब हम क्या करेंगे, dy by dx की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड है dy by dx माइनस y. तो पुट कर देते हैं. यहाँ पर dy by dx की वैल्यू आ गई हमारे पास में e की पावर x, माइनस y की वैल्यू भी आ गई, y इज e की पावर x, और e की पावर x माइनस e की पावर x आ गया 0, और ये आ गई राइट हैंड साइड. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा. इट मींस y इज इक्वल टू e टू द पावर x इज ए solution of the given differential equation
और कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy by dx माइनस y इज इक्वल टू 0, dy by dx माइनस y इज इक्वल टू 0, यानी ये रिलेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y by dx स्क्वायर माइनस 3dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0 एंड y is equal to b e to the power x plus c e to the power 2x is a relation. We want to check y is equal to b e to the power x plus c e to the power 2x is a solution or not of this differential equation. यानी हमें चेक करना है कि y जो रिलेशन आपको बता रखा है y और x में, क्या ये रिलेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। अगर ये रिलेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो हम चेक करते हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट है। तो हम यहां पे लेंगे सिंस y इज इक्वल टू b e की पावर x प्लस c e की पावर ट्वाइस x। तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेंगे। इसका dy by dx आ जाएगा y x के रिस्पेक्ट, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो b कांस्टेंट है, e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। c e की पावर 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा ट्वाइस e की पावर 2x, क्योंकि पहले आप e की पावर x का करोगे फिर उसके बाद 2x का करोगे। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन, हम फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू b एज इट इज आ जाएगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, प्लस यहां फिर से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो e की पावर 2c कांस्टेंट हो गया, e की पावर 2x का डेरिवेटिव 2e की पावर 2x होगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 c e की पावर 2x। तो हमने यहाँ पर dy by dx फाइंड कर लिया एंड d2y by dx स्क्वायर फाइंड कर लिया। नाउ गिवन इक्वेशन इज d2y by dx स्क्वायर माइनस 3dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और LHS है d2y by dx स्क्वायर माइनस 3dy by dx प्लस 2y, और इस तो d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू आई थी b e की पावर x प्लस 4 c e की पावर 2x माइनस dy by dx को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy by dx की वैल्यू है b e की पावर x प्लस 2c e की पावर 2x। इसको 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3b e की पावर x एंड माइनस 3 2 जा 6 c e की पावर 2x प्लस, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2y लिखा हुआ है और y की वैल्यू बता रखी है b e की पावर x प्लस c e की पावर 2x। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2b e की पावर x प्लस 2c e की पावर 2x, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो b e की पावर x एंड 3b e की पावर x एंड 2b e की पावर 3b e की पावर x हो गया, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 4c e की पावर 2x एंड 2c e की पावर 2x, तो ये हो गया 4 प्लस 2 हो गया 6, और ये माइनस के 6 है तो ये भी कैंसिल हो गया, और इस तरीके से रिजल्ट आ गया 0। इसका मतलब ये जो रिलेशन था y इज इक्वल टू बी ई की पावर x प्लस सी की पावर 2x, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ये होगा y इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये y जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स में एक ऐसा रिलेशन जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन मींस द सॉल्यूशन कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम फाइंड करें
और उसमें जैसे अभी हमने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर उस रिलेशन में कुछ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और वो रिलेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और अगर हम जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को अगर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दें तो हमें वहां से मिलता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो जनरल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट is called general solution of a differential equation, and particular solution is a solution obtained by giving particular values to arbitrary constants in general solution of a differential equation is called particular solution। तो अगर जनरल सॉल्यूशन में हम arbitrary constants को कुछ वैल्यूज दें, कुछ रियल वैल्यूज दें, रियल नंबर्स देते हैं, तो हमें वहां से मिलता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहां पर आप देख रहे हो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y by dx square plus y is equal to 0 and there are two relations are given। first is y is equal to a cos x plus b sin x and second is y is equal to 3 cos x plus b sin x। तो यहां पर जो a और b है, a और b ये क्या है? आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। और इस जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की जगह आपने देखा यहां पर a की जगह 3 है और b की जगह 2, तो ये होगा जनरल सॉल्यूशन। और सेकंड जो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 2 sin x, ये होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्योंकि फर्स्ट जो सॉल्यूशन है वो है जनरल सॉल्यूशन और सेकंड जो है वो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्योंकि फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम इसे जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, और सेकंड में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हमने कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज दे दी, तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। So we can say solution having arbitrary constant is called general solution, and if we give some specific values to arbitrary constant in general solution, then we get a particular solution। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसके दो सॉल्यूशन हैं, एक जनरल सॉल्यूशन है और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। हम चेक कर लेते हैं कि ये इसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पर, डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y by dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। यहां पर फर्स्ट सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, where a and b are arbitrary constants। तो इस रिलेशन में a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एग्जिस्ट है, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। अब चेक करते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम यहां से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, dy by dx डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट, तो यहां से मिलेगा a sin x डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x प्लस b डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। नाउ अब क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a cos x एंड माइनस b sin x। और ये dy by dx और d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अगर ये इसको सेटिस्फाइड करती हैं तो जो रिलेशन था यहाँ पर y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। तो लिखते हैं यहां से, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं d2y by dx स्क्वायर, तो पुट कर देते हैं इसमें d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू है माइनस a cos x माइनस b sin x प्लस y। व्हाट इज y? y is given, y is a cos x plus b sin x, so plus
a cos x प्लस b sin x, और हम इसे यहां सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ माइनस a cos x प्लस a cos x से कैंसिल हो गया, माइनस b sin x से कैंसिल हो गया, और इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाती है 0 और ये आ गया राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये होगा कि y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज जनरल सॉल्यूशन, जनरल solution of this differential equation, because in this solution there are two arbitrary constant exist. अब सेकंड यहाँ पे जो था, सेकंड था y इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 2 sin x। यहाँ पर हमने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को कुछ वैल्यू दे दी, स्पेसिफिक वैल्यूज दे दी। a की वैल्यू यहाँ पे 3 है और b की वैल्यू 2 है। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इसे भी चेक कर लेते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। सेकंड यहाँ पे है y इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 2 sin x। तो जो फर्स्ट सॉल्यूशन था जनरल सॉल्यूशन, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b थे, तो a को हमने 3 वैल्यू दे दी और b को हमने 2 लिख दिया। तो ये a और b जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, इनको हमने कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज दे दी, और हमें यहाँ से एक और सॉल्यूशन मिल गया, या यूं कहें कि एक और रिलेशन मिल गया x एंड y में। अब हम चेक करेंगे कि y इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 2 sin x इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x, और फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। सो d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 cos x माइनस 2 sin x। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, और अब हम चेक कर लेंगे कि क्या ये दोनों, क्या ये जो y था, ये जो रिलेशन है x और y में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y। इसमें हम d2y बाई dx स्क्वायर और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आई थी माइनस 3 cos x माइनस 2 sin x प्लस y। So what is y? Y is given, y is 3 cos x plus 2 sin x, और इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 3 cos x एंड प्लस 3 cos x कैंसिल हो गया, और माइनस 2 sin x और 2 sin x कैंसिल हो गया, और ये आ गया 0, और ये राइट हैंड साइड है। इसका मतलब ये होगा कि जो सॉल्यूशन था, या जो रिलेशन था y इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 2 sin x, ये रिलेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। इसका मतलब y इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों कहा? क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दे दी, और पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करने के बाद हमें जो रिलेशन मिला उसे हम कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है। अब यहां पर एक और बात आती है, we know that a solution having arbitrary constant is called general solution. So how many arbitrary constants are exist in a general solution of a differential equation? So very simple, a number of arbitrary constants is equal to order of a differential equation. अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है तो उसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, और अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है तो उसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स उसमें एग्जिस्ट होते हैं। नाउ एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। हाउ टू चेक ए रिलेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन और नोट। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 4 एंड 6 लिखा है। ये कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन बता रखे हैं और इनके सामने कुछ रिलेशंस बता रखे हैं। हमें चेक करना है कि ये रिलेशंस
इन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं। तो आपको देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी आ रहा है वो आप उस रिलेशन से फाइंड कर लेंगे डिफरेंशिएट करके, और उसके बाद अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है तो वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो रिलेशन बता रखा है वो है y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हमने यहाँ से डिफरेंशिएशन किया और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिला ई की पावर x प्लस 0, और फिर से डिफरेंशिएट कर लेंगे तो y डबल डैश आ जाएगा ई की पावर x। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और इसकी LHS है y डबल डैश माइनस y डैश, और ये हम इसमें पुट करेंगे। सो y डबल डैश की वैल्यू आई e की पावर x माइनस y डैश की वैल्यू है e की पावर x, और ये आ गया 0, और ये आ गई राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये होगा कि ये रिलेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन कैसा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो रिलेशन बता रखा है वो है y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश आएगा हमारे पास में 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और y डैश की वैल्यू आ गई x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे है, सिंस डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर जो हम इसमें y डैश की वैल्यू आई, y डैश आया x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो मैं अगर इसे y से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में y की वैल्यू पुट कर देंगे, और y क्या है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स वाई अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को आप सेल्फ ट्राई करके देखेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि ये y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो आज हमने डिस्कस किया सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे उन वेरिएबल्स में एक ऐसा रिलेशन जो उसको सेटिस्फाइड करेगा, वो उसका सॉल्यूशन होता है। और कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, सेकंड होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एग्जिस्ट होंगे, और अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं तो वो हमें वहां से मिलता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और एक और बात हमने वहां पे डिस्कस की थी, how many arbitrary constants are exist. So remember, number of arbitrary constant is equal to order of a differential equation. Next topic हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू so much.